Hello, dear students. Welcome back once again to Business Studies with Anubha. I hope that you are enjoying the lessons and are able to understand the concepts being explained. Children, as we have already studied in the communication network, that feedback completes the communication loop. I request you to put your queries or doubts regarding the topic in the comment section. Moreover, I would like to give you one useful tip here that use of colors or figures make your lesson interesting, grabs your attention. And when it catches your attention, you are able to understand it properly. And when you understand, then it remains in your memory for longer time. That means retention बढ़ जाता है. और जब आप किसी भी टाइम एग्ज़ाम के टाइम या उसके पहले भी when you try to recall it, then you can attach the color code or picture code with that concept. So it helps you. Now let us begin the chapter. Today's lesson, chapter directing, topic communication networks. So networks are basically the patterns of the flow of communication. In the previous video, with the help of one case study, we studied what is the meaning of formal communication and what is the meaning of informal communication. So in an organization, both are present there. Formal communication flows through the scalar chain or the line of authority or the chain of command, whereas informal communication is in the informal group and it shows free flow. So let us see what are the different types of networks. In formal communication, we have single chain. First type is single chain, where you can see that A is the superior, the information flows to B, who is the subordinate of A. Then from B to C, B is the superior to C, like that. So here superior to subordinate, immediate subordinate, the flow of communication is in single chain, scalar chain. So obviously the flow of communication will be slow because we cannot skip any of the component of this chain. Then wheel pattern. Here the superior is at the center. We can say that he acts like the hub of the wheel, and he does not allow the subordinates. He has more than one subordinate, B, C, D, E, and he does not allow them to communicate among themselves. He only passes all the information to these subordinates. Okay, so this is centralized. This is present in the centralized organizations. Then circular pattern. Here you can see that each of the member is in contact with the two adjacent member. That means the flow of communication can be, जैसे B जो है वो A से भी communicate कर सकता है और C से भी कर सकता है, A भी उसी तरह से B से और C से. तो इस तरह से जो communication है ये, क्योंकि इसमें एक के साथ दो जुड़े हुए हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो होता है. देन फ्री फ्लो. दिस इज़ मोर डिसेंट्रलाइज्ड, वेयर वी हैव all the components, all the members can communicate with each other freely. इसमें कहीं कोई restriction नहीं है, कोई भी restriction नहीं है. A जो है वो B से भी communicate कर सकता है, C से कर सकता है, D से कर सकता है, E से. Similarly, B can also communicate with anyone. So you can see how fast the communication will be here because there is no restriction on the flow. Then inverted V. Inverted V जैसे इसमें subordinate is allowed to communicate with immediate superior as well as the superior's superior. मतलब जैसे यहाँ पे B का बॉस A है और B जो है C और D का बॉस है. हम कह सकते हैं कि C और D सबऑर्डिनेट हैं, B उनका सुपीरियर है और B की सुपीरियर जो है A है. तो यहाँ C और D ना सिर्फ B से बल्कि A से भी ज़रूरत पड़ने पर उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं डायरेक्टली. लेकिन वो जो मैटर या इशू है कुछ प्रिस्क्राइब्ड या लिमिटेड स्पेसिफिक इश्यूज होगा जो कि मैनेजमेंट डिसाइड करेगा. हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं. सपोज़ टीचर्स हैं, टीचर्स को अगर कोई ऐसी पॉलिसी टीचिंग की नहीं समझ में आ रही है तो वो डायरेक्ट अपने प्रिंसिपल से बात कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द हेड मिस्ट्रेस और सुपरवाइज़र.
So that is inverted V manner or network or pattern. Now in the informal communication networks we see we call it as grapevine communication or water cooler talk और rumor mill. क्यों ऐसा कहते हैं? क्योंकि जैसे कि ग्रेपवाइन में जिस तरह से हम देखते हैं कि इसकी कोई दिशा नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है जिसमें ये इन्फॉर्मेशन फ्लो होगा, उसमें जो अंगूर के गुच्छे हैं वो किसी भी तरह किसी भी डायरेक्शन में ग्रो होते हैं। उसी तरह से यहाँ जो इन्फॉर्मेशन फ्लो है वो ऐसा जिगजैग है कि देयर इज़ नो पर्टिकुलर डायरेक्शन। नाउ हियर वी सी single strand. Here one member can give information to the B, the other can give it to C. Now here there is nothing like that superior subordinate here because this is informal group. So here these people can communicate in मतलब एक sequence है, A से B को information गई, B से C को गई, C से D को गई, then E. Gossip network. अब इसमें gossip network जो है इसमें on non-selective basis the information is exchanged or given to the social groups. मतलब जैसे आपने एक ऐसा मैसेज, जैसे अब हम एक फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में हम एक मैसेज डालते हैं जो सारे लोगों को एक साथ पहुंच जाता है, जबकि सिंगल स्ट्रैंड में हम 1 to 1 जब हमारा किसी के साथ चैट है तो वो मैसेज 1 to 1 जाता है। तो ये है नॉन सेलेक्टिव बेसिस पे होता है इसमें सोशल ग्रुप्स में, और नॉर्मली इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द जॉब। अब जैसे वर्कर्स हैं वो कैफेटेरिया में बैठ के आपस में कुछ बात कर रहे हैं, भले ही वो कुछ देर अपनी जॉब से रिलेट बात करते हैं, बट उसके बाद वो जो मैसेज है वो इतना डिस्टॉर्टेड हो जाता है कि इट इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द जॉब। देन नेक्स्ट इज़ प्रोबेबिलिटी नेटवर्क। अब इसमें जो सोर्स है इन्फॉर्मेशन का वो चूज़ नहीं करता, बस रैंडमली बाई चांस जिससे भी वो मिलता है वो उसको वो इन्फॉर्मेशन पास करता है। जैसे ए जो है बी और सी को बी को इन्फॉर्मेशन पास करता है, देन ई को इन्फॉर्मेशन देता है, जी को करता है, लेकिन वो एफ डी और सी को नहीं कर रहा है, और बी जो है वो सिर्फ सी को कर रहा है, वो डी ई को नहीं कर रहा है। पर ये चांस की बात है, ऐसा नहीं कि उन्होंने सेलेक्ट किया है, बस बाई चांस दे सपोज ए मेट बी एंड ई एफ ई एंड जी, सो दैट वॉज मैसेज वॉज सेंड टू देम, एंड ये जो बाकी लोग हैं वो छूट गए थे। ठीक है। देन क्लस्टर नेटवर्क में कुछ इसी तरह का है, लेकिन यहाँ पे चॉइस नहीं है, यहाँ पे वो सेलेक्ट करते हैं जो हमारे विश्वसनीय लोग हैं, हम उनको ही वो बात बताते हैं या वो इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। तो ये सेलेक्टिव है, ओनली टू द सेलेक्टेड ट्रस्टवर्दी पीपल द इंफॉर्मेशन इज शेयर्ड। जैसे यहाँ पे ए ने चूज़ किया है कि बी और एच को बताना है, सी और डी को नहीं बताना है, बी ने चूज़ किया है कि सी और डी को बताना है, एच को नहीं बताना है, या ई जो है उसने सेलेक्ट किया है एफ और जी को कोई इन्फॉर्मेशन पास करनी है, बाकी ए सी डी बी एच को नहीं पास करनी है। तो वो क्लस्टर है, एक एक क्लस्टर जैसा है, अपने अपने ग्रुप में वो इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है। उसके बाद हम देख लेते हैं धीरे जल्दी से कि फॉर्मल और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है। फॉर्मल में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। फॉर्मल के एडवांटेजेस में है रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, परमानेंट रिकॉर्ड्स। नाउ रिलायबिलिटी मीन्स बिकॉज वी नो द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, जो भी सुपीरियर है वो सबॉर्डिनेट को जो भी इंफॉर्मेशन पास करता है, तो हम इसको एक रिलायबल सोर्स कहते हैं, क्योंकि हम इसका परमानेंट रिकॉर्ड रखते हैं। बाद में ऐसा नहीं होगा कि सुपीरियर बोल देगा कि मैंने ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया था। ठीक है। और एफिशिएंसी बिकॉज इट इज़ रिलेटेड विद द वर्क, ओनली फॉर्मल, देयर इज़ नो पर्सनल रिलेशनशिप, इम्पर्सनल है, इसलिए ये वर्कर्स के परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है और एफिशिएंट बनाता है। अब यही जो चीज़ें हैं वो देखेंगे हम इनफॉर्मल में, उसके ड्रॉबैक्स या जो डिसएडवांटेजेस हैं। अनरिलायबल है क्योंकि इसमें मैसेज डिस्टॉर्ट होता है, तो र्यूमर्स के चांसेस होते हैं, और कंट्रोल नहीं होता क्योंकि ये मैसेज जो है इसका सोर्स लोकेट नहीं हो पाता, ट्रेस नहीं हो पाता। अब हम देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इनफॉर्मल।
रैपिड होता है, ठीक है। अब इसी का जो फॉर्मल का डिसएडवांटेज है क्योंकि स्लो है, क्योंकि ये सिर्फ एक लाइन ऑफ कमांड को फॉलो करता है, जबकि यहाँ पे फ्री फ्लो है इसलिए ये रैपिड या फास्ट होता है। Alternative of formal communication. Sometimes some changes have to be introduced. Now people resist change, so the informal groups can be used for गेटिंग द रिएक्शन। मतलब जैसे एक बॉस है, उसको एक नया चेंज अपने डिपार्टमेंट में इंट्रोड्यूस करना है, तो वो फॉर्मल कम्युनिकेशन के थ्रू करेगा, तो जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो रेजिस्ट करेंगे। इसीलिए उसको जानने के लिए कि लोगों का उसमें फीडबैक क्या है, रिएक्शन क्या है, वो इनफॉर्मली कम्युनिकेट कर सकता है और उनको परसुएड कर सकता है, कन्विंस कर सकता है इन इनफॉर्मल मैनर टू एक्सेप्ट द चेंज, ठीक है। देन इट सेटिस्फाइज द सोशल नीड्स, जो कि इसमें नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कोई कोऑर्डिनेटी या पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है। ये बहुत रिजिड, मतलब एक बार जो रिटन में भेज दिया गया इंफॉर्मेशन वो इनफ्लेक्सिबल है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। जबकि यहाँ पे क्या है, ये सोशल नीड्स को फुलफिल करता है, ठीक है। सो विद दैट वी एंड टुडेज लेसन। In the next lesson, we will see the barriers to effective communication. Thank you all. Keep learning. Happy learning. Keep watching. Thank you.